Sangeeta Meena and I am going to teach you science. We are going to study our first chapter, which is crop production. In this chapter we are going to study about how crops are produced, what are the processes of producing crops and what are the methods by which agriculture practices are done. First we are going to study about the what does agriculture mean. Agriculture simply means the practicing and the systematic processing of growing a crop from starting sowing of seed till continue till the cutting of the crops. Agriculture is derived from a Latin word which means ager. Ager means field and cultura means cultivate. It simply means field which is cultivated is included in agriculture. Second thing we are going to study is crop plant. What is crop plant? Plants are those plants in which plants are grown in a large number of quantity on a फील्ड. जब हम बहुत ज़्यादा मतलब एक ही टाइप के क्रॉप से एक ही टाइप का जो पौधा है अगर हम उसको लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करते हैं तो उस जो प्लांट होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं, यानी कि हिंदी में आप इसको फसल कह सकते हैं. ठीक है. तो क्रॉप का मतलब क्या होता है, जब मतलब कि आपने एक बहुत बड़े एरिया में, जैसे कि हम जब एग्रीकल्चर का हिंदी मीनिंग क्या होता है, खेती करना. तो जब आप एक ही टाइप के, जैसे आपने वीट ले ली, वीट ही आपने बहुत बड़े लार्ज लैंड में ग्रो की है तो वो आपकी क्या है, क्रॉप प्लांट हो जाती है. यानी कि एक ही टाइप के प्लांट को आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करवाया है तो वो हमारा क्रॉप प्लांट होते हैं. क्रॉप प्लांट्स जो होते हैं वो मेन types of crop are mainly of three types. First is Ravi crop, second is Kharif crop and third is Z crop. Ravi crop are mostly grown in October to March, like for example wheat and legumes. This crop needs very little amount of rain, that's why these crops are known as Ravi crops. Second is Kharif crop. Kharif crop is grown mainly in June to October. This crop includes mainly example of Kharif crops are rice, maize, groundnut. These are grown in June to October. Last and the third category of our crop plants are Z crops. Z crop mostly includes the crops which are grown in between the March to June. For example, watermelon, cucumber. These are the crops which are grown in March to June. Next thing we are going to study in this chapter is agriculture practice. How the processing of crop from starting to end by growing a crop to cutting till cutting it and selling it, what are the processes we take or what are the processes farmers perform to gain their crops to produce some yield of the crops. दिस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. हम जब एग्रीकल्चर प्रिपरेशन के बारे में पढ़ते हैं तो एग्रीकल्चर प्रिपरेशन का मतलब होता क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि जब एक क्रॉप को यानी कि एक प्लांट को ग्रो किया जाता है, द फर्स्ट स्टेज जो होती है प्लांट की वो होती है सीड. उस सीड को ग्रो करने से लेके टिल द प्लांट ग्रोज कंप्लीटली एंड द कल्टिवेशन ऑफ दैट प्लांट performs and the storage then selling till the selling part, all this included in our agriculture practice. तो क्रॉप को एक सीड को ग्रो करने से लेके पूरा उसको कट करने तक, उसको सेल करने तक की जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो हमारे किस में आती है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आती हैं. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड होता है soiling, third is adding manure or fertilizer, fourth is irrigation, fifth is weeding, sixth is crop protection, seventh is harvesting and threshing and eighth is storage of grain. We are going to study this process in details in our further way. First we are going to study about the preparation of soil. What is done in preparation of soil? Preparation of soil में क्या किया जाता है? As the name itself defines it, preparation of soil. We have to prepare soil for what? For growing crops, for sowing the seeds. First we have to dung plug, then hoe, cultivator, then leveling. These are the four steps by which we are going to prepare our soil. First preparation of the soil includes the preparation of the soil involves losing and tilling. लूजिंग, टर्निंग और टिलिंग जिसको हम कहते हैं, दिस इज़ नोन एज आर प्लगिंग और टिलिंग. प्लगिंग जो होता है उसको हम टिलिंग भी कहते हैं. इसमें क्या किया जाता है कि जो सॉइल ऑलरेडी हमारे पास एग्रीकल्चर फील्ड प्रेजेंट है उसकी जो सॉइल है उसको खोद के उसको इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है सीड के लिए, बीज के लिए, ताकि आप उसको सॉफ्ट बना सकें. उसको खोदा जाता है ताकि हम उसको आगे जाके सीड्स वहाँ पे ग्रो करवा सकें. तो ये हमारा जो सबसे पहली चीज़ होती है प्लॉग करने की, उसमें क्या किया जाता है कि जो सैंड है, जो लैंड
लैंड है उसको प्रिपेयर किया जाता है, उसको लूज किया जाता है, उसको खोदा जाता है ताकि उसकी जो बीच की नीचे वाली जो नमी है वो ऊपर आ जाए और जो वो एरिया है जो कि स्टफ हो चुका है, टाइट हो चुका है, उसको लूज किया जाए। तो ये हमारा प्लग में आता है। प्लगिंग जो होती है वो पुराने टाइम में आपने देखी होगी, पहले हल चलाए जाते थे, ठीक है। इनिशियली सबसे पहले तो जो लोग होते थे वो खुद ही हल चलाते थे अपने खेतों में, लेकिन सेकेंड टाइम उन्होंने किससे शुरू कर दिया ये सब करवाना, जो ऑक्स होते हैं उनसे उन्होंने इनको शुरू करवा दिया। बैल वगैरह से वो सब भी प्लगिंग वगैरह करवाने लग गए हैं। जैसे बैलगाड़ी यूज़ की जाती थी, तो बैलगाड़ी वगैरह जैसे हल जो होते थे बैलों के थ्रू चलवाए जाते थे, तो वो सब क्यों किया जाता था, हमारा प्लॉग करने के लिए, यानी कि सीड जो फील्ड है उसको लूज करने के लिए किया जाता था। सेकेंड हो जाता है हो। हो में क्या होता है, हो इज़ यूज और रिमूविंग वीड्स एंड लूजिंग एंड ब्रेकिंग द लम्प ऑफ सॉइल्स। बहुत बार आपने देखा होगा कि वी हैव ऑलरेडी सीन दैट लम्प्स ऑफ सॉइल्स आर मेड, सो मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर देयर इन सॉइल। में क्या होता है कि बहुत सारी ज़मीन है हमारे पास, आपने देखा होगा कि मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े बन जाते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड में क्या होता है कि जो बड़े बड़े पीसेस बन जाते हैं सॉइल के, जो इकट्ठे हो जाते हैं, उनको हमें ब्रेक करना होता है, उसको हमें तोड़ना होता है। तो उसके लिए हम हो जो होता है इसको यूज़ किया जाता है। हो को इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम जो बड़े बड़े पीसेस हैं सॉइल के उसको तोड़ सकें और उस सॉइल को हम थोड़ा और सॉफ्ट बना सकें, ईजिली यूजेबल बना सके, इसलिए हम उनको हो के देते हैं। सेकेंड होता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर में क्या होता है कि आजकल काल के टाइम में जो होता है कि जैसे हम पहले हल वगैरह यूज़ करते थे, हम बैल यूज़ करते थे ताकि हम सॉइल को क्या कर सकते हैं, लूज बना सके, उसको कल्टीवेटिंग करने के लिए बना सके, उसको टिलिंग कर सके, प्लगिंग करने के लिए। तो आज के टाइम में क्या होता है, कल्टीवेटर्स यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर्स, सम मशीन्स आर मेड विच आर यूज टू डू दिस प्रोसेसिंग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, लाइक मेकिंग सॉइल लूज and easy to use. So these are the cultivators which are used to make soil easily, to make soil loose and for the removing all the extra weeds. Weeds means जो भी एक्स्ट्रा हमारे प्लांट्स होते हैं। कई बार क्या होता है खेती में जो हम कोई भी क्रॉप्स ग्रो की जाती है उसमें कुछ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं विच आर नॉट यूजफुल फॉर अस और फॉर द विच आर नॉट बेनिफिट फॉर द क्रॉप्स। तो farmers, what do the farmer do? Farmer remove these weeds. For removing these weeds or for losing, for making soil perfect, for making soil loose, they use cultivator process. After that they make the leveling. Leveling में इनमें क्या किया जाता है, leveling में they are doing what do they do in the leveling, they make the soil like that every level of the soil become equal, so that the nourishment of the soil from the under comes out towards the upper side. प्लगिंग में सबसे पहले मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या किया जाएगा, लेवलिंग में क्यों की जाती है कि जो ऊपर की जो सैंड है, अगर आप कई बार देखोगे कि जब एक ही लेवल पे सैंड कई टाइम तक रहती है तो वो बहुत स्टफ बन जाती है, रफ बन जाती है, टाइट बन जाती है। तो प्लगिंग क्यों की जाती है कि जो जब हम प्लगिंग करते हैं यानी कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, सॉइल को खोद रहे हैं, तो नीचे की जो नमी वाली मिट्टी है वो ऊपर आ जाती है और ऊपर की सूखी मिट्टी नीचे चली जाती है। इससे क्या होता है कि जो नीचे का जो नरिशमेंट है, जो नीचे की जो हमारी न्यूट्रिएंट्स है, वो सब धीरे धीरे ऊपर आना शुरू कर देते हैं और इस तरीके से लेवलिंग की जाती है ताकि जो क्रॉप है, जो सीड्स है, जो आगे ग्रो की जाए, उनको उनका अच्छे से नरिशमेंट मिल जाए। अगर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल नहीं की जाएगी, अगर सॉइल को हम प्रिपेयर नहीं करेंगे, सॉइल को लूज नहीं बनाया जाएगा, तो जो भी आप सीड्स वगैरह उस पर ग्रो करेंगे वो प्लांट्स जो है वो आगे जाके अच्छे से डेवलप होंगे ही नहीं। तो इसके लिए हमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारा जो है सोविंग। सोविंग में क्या होता है, सोविंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड्स इन prepared soil. We have already read about preparation of soil, that's why there is a prepared soil. Prepared soil with all these activities have already have been done in that soil. Now the